रोशनी का कारवां I wait ये है रोशनी 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 का कारवां रोशनी I wait ये है रोशनी का कारवां हेलो यस हाँ मैडम, वीडियो ऑन होने से तो बैंडविड्थ ज्यादा लेता है ना, फिर तकलीफ नहीं होगा? सॉरी पर हम लोग वीडियो ऑन रखे हैं हाँ तो बैंडविड्थ ज्यादा लेता है ना नेट का, ओके तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? हाँ जिसका बैंडविड्थ में इश्यू है वो ऑफ रखे, लेकिन जिनका इंटरनेट ठीक है थोड़ा वो ऑन रखें तो अच्छा रहेगा प्लीज। ठीक है मैम। ऑल सेशन में, पूरे सेशन में, हाँ जी फुल प्लीज। सेशन में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब ये चालू कर देंगे ना मैडम पर बोलना, आप, स्पीकर चालू कर देंगे बोलना, तब ऑन कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है मैम। थैंक यू। मंजिमा Yeah, Shruti, yeah. can you also text people who these unnamed accounts are, just individually text them on chat, Zoom chat, see if they respond. Yeah, yeah, giving it to everyone. Hello. देखिए तो स्टार्ट होगी मीटिंग। Let's see, 50. Good. It's before 4. We've got about 28 people already. Yeah. So Rajdeep had requested that we start on time so that he can speak for about 30-35 minutes and then field questions. Sure. So at 4, I'll just do a brief introduction and then hand over the session to him. Just make sure that you spell out the house rules also quickly. Sorry? Spell out the house rules first, George. Huh.
and then Yeah, of introduce course. the guest, so that Yeah. because I've realized that when I cut the edit, no, the video, it helps. Yeah. Yeah. Hi, Abraham. Hello, who's this? This is Chandranath from Kolkata. How do you do? Very well, thank you. Welcome. Welcome. Thank you. Who was that? Chandranath. 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 Okay. Hi. Sir, Hi. George sir, good evening. I am Vamshi from Tirupati, Andhra Pradesh. Yes, good afternoon. Hi, Vamshi. Hello, Hello, George madam. sir. Danish from Radio Udan. Hi, Danish. कैसे How are you? कैसे हो? Good, good. Sir. Badhiya, thank you. Danish, can you turn your video on? Possible? मैं मोबाइल से सॉरी लैपटॉप से Hello? ये पीसी से यूज नहीं करता मैं वेबकैम. अच्छा, कोई बात नहीं. All right. Hi, George. Hello, How are sir. you? Hello, sir. This is Deepta Ghosh Chaudhary from Siliguri, West Bengal. Welcome, welcome. Good evening, sir. Good evening. Mahadev Sawant from Goa, NAB. Who's from Goa? NAB? Mahadev Sawant from Goa, NAB. Welcome. Hello, welcome. Thank you, sir. Hello, good evening, sir. This is Akshay Bhangle from Goa, National Association for the Blind. Same. Yeah, okay. Good evening. Welcome. Good evening, good evening. Yes. Thank you so much. Yes. Hello. Hello, Nanne Singh from Kolkata. Welcome. Nanne Kumar Singh from Kolkata. Welcome, welcome. Bhalo, bhalo. Hi, sir. Aziz Hello, from Ahmedabad. Aziz from? Ahmedabad. Ahmedabad. Okay. Aziz Minat, is it? Good evening, Yes, sir. same. Good evening. Piyush from Delhi. Good evening, Piyush. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. This is Nitin Sharma from Himachal. हिमाचल प्रदेश. स्वागत है आपका. Thank you, sir. नमस्कार रमाकांत भाई. सर नमस्कार, मैं नन्हे कुमार सिंह बोल रहा हूँ कोलकाता से. हाँ, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार रमाकांत भाई, कैसे हैं? बढ़िया सर. स्वागत है. नमस्कार. धन्यवाद सर, धन्यवाद. हेलो. हाँ सर, this is Suhas from Mumbai, working for RBI, Mumbai, Belapur. Suhas what? Suhas Nambudri. Right, welcome Suhas. Yeah, thank you. Hi George, Praveen here. Hey Praveen, hi, how are you? Good. Moto G4 has joined the meeting. I wonder who he is. There are many such now. I think it's almost 4. So They we'll might deal not with be that able to later. read the messages. Sir, good evening, Shruti. Good evening. This is Sadhguru here, sir. Good evening, Hi. Sadhguru. Good evening, Hi. Sadhguru. Good. We are closing in on the 50 mark. Yes. Hello, good evening, sir. Good evening. Welcome. Hello, good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Namaskar. Hello. Good afternoon, sir. Hello. Good evening, sir. Just wanted to know, you want me to keep the video also on? Yes, please. The video on and the audio will be on mute while the speaker is talking, and then we'll unmute as and when you have questions. Can you just let me know that I'm visible correctly? You are visible. Absolutely. Okay. Thanks. Thanks. Hello. That's Rajdeep, George. Hi. Can you hear me, Rajdeep? Yes, I can. Can you see me, or I think I've... Yeah, Rajdeep. This is Shruti. Hi. Hi, Shruti. How are you? I'm good. How are you? Very well. Am I on time? People hardly seldom are delayed. You were online from 3:30 onwards. Yeah, I just kept that on, but I just got in just now. Yeah. Hello, Rajdeep sir. How are you? Yeah. Hello. Hi. How are you? Hi, Jeet. Yeah. Hello, Rajiv sir. How are you? How are you? Good to see all you I am young from people. Gujarat. Your hometown. Should I speak in Hindi or English? Neha. Sorry, I'm going to mute some. Shruti, should I speak in Hindi or English? It can be a mix of Hindi and English, right, George? Mix up. Yeah, I think a mix will be good. सर हिंदी ज्यादा बोलिए. हिंदी ज्यादा ठीक है. तो मैं हाँ हिंदी कंफर्टेबल है. उसके बाद आप सवाल पूछिएगा. So it's 4 o'clock. So I think before we start some ground rules, so that good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this IWay Encounters. My screen reader is speaking. Yeah. So before we start, I just want to kind of request a few ground rules. I would request everybody to mute their microphones and keep the videos alive, but the microphones please be muted because it interferes with the speaker's delivery. It also interferes with the concentration and the listening of your co-audience. So my request is that everybody follow the discipline of keeping the microphones off. And Rajdeep Sardesai would be speaking for about 30-35 minutes, and then we have about 15 minutes to ask whatever question we want to ask. So let's not interrupt in the middle. We would request all of you to keep it on mute. I repeat, mute, microphones on mute. And so Shruti, are all the mics on mute just now? Yes, but there might be a couple of them joining in just now. But I'll keep muting them as and when they enter. Okay, all right. So welcome to this episode of IWay Encounters. This is our 5th episode, and we are privileged to have Mr. Rajdeep Sardesai as our speaker today. And Rajdeep is an icon when it comes to television and journalism in India, and globally. He's also written several books on the various political issues of the country. Without taking too much of anybody's time, let me hand over the... I would also like to mention here that in 1971, when the Indian cricket team had toured the West Indies under the captaincy of Ajit Wadekar, we all remember Sunil Gavaskar had made 774 runs.
But there was another batsman who made 650 runs, and we seldom remember him. He had made a double century in the first test, 212. 212, I think it was. He had made 150 in another in the Barbados test match. And that was Dilip Sardesai. And he happens to be Rajdeep's dad. So a famous son of a famous father. So it's a privilege, Rajdeep, to have you here, and the mic is yours. Thank you very much. First of all, George. Namaskar, everybody. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है. Thank you. Among the specially abled, so it's a privilege for me to be here. मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मैं आपके बीच में इस तरह से आ पा रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ. Zoom का जमाना है, इसलिए I am also under lockdown. आपकी तरह मैं घर से बात कर रहा हूँ. मैं शाम को स्टूडियो जाता हूँ 2 घंटों के लिए, लेकिन नहीं तो मैं घर पे रहता हूँ. जॉर्ज ने मेरे पिताजी का जिक्र किया. देखिए, वो वाकई टैलेंटेड थे, इसलिए वो क्रिकेट खेल पाए. ऑलवेज से कि क्रिकेट में आपको टैलेंट की जरूरत होती है, पत्रकार बनने में आपको टैलेंट की जरूरत नहीं बनती. पत्रकार तो कोई भी बन सकता है. व्हेन यू फेल इन एवरी अदर प्रोफेशन, आप पत्रकारिता में आते हैं. जब आप किसी और प्रोफेशन में आपको सक्सेस नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती, तो आप पत्रकार बनते हैं. माय फादर वाज, और मेरे पिताजी के पास कोई वो साधन नहीं थे. वो एक छोटे से शहर से आए, मड़गांव. आज तक भी वो एक में गोवा बॉर्न क्रिकेटर है. गोवा से एक ही क्रिकेटर आज इतने 300 से ज्यादा क्रिकेटर भारत के लिए खेले हैं, पर वो एक में गोवा से क्रिकेटर थे. बड़े कठिनाई मेहनत से वो करके वो भारत के लिए खेले. कोई गॉडफादर नहीं था. मैं उनको कभी कभी कहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी अपने जमाने के. आज तो कम से कम टीवी के जरिए और एकेडमीज के जरिए आप छोटे शहर से भी कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन 1950-60 के दशक में बहुत कम लोग छोटे शहर से इस तरह से आते थे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग माय फादर. एंड टुडे इज अ स्पेशल डे. आज एक अनोखा दिन है. जून 25 का जो दिन है वो 2 कारणों से एक स्पेशल डे है. आज 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था और वर्ल्ड कप जीता था. तो हमारे लिए एक बड़ा खुशी का दिन था. क्रिकेट बदला, देश एक तरह से बदल गया उस दिन. और दूसरी बात, इसी दिन पर 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू की थी. तो ये एक ऐसा एक हम कह सकते हैं काला दिन भी था, क्योंकि 75 में जिस तरह से लोकतंत्र को दबाया गया और 1983 में जिस तरह से कपिल देव ने वर्ल्ड कप और टीम ने वर्ल्ड कप जीता, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे. सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे. और ये 2 मेरे जिंदगी के 2 आप कह सकते हैं प्रोफेशन, हॉबी, किस तरह से कहें मैं नहीं जानता. क्रिकेट और पॉलिटिक्स, मैं इन 2 चीजों पर लिखता हूँ, बोलता हूँ, और ये 2 मेरे बड़े पसंदीदा चीजें हैं. अब आप कहेंगे क्रिकेट और पॉलिटिक्स में क्या अंतर क्या है और क्या समानता क्या है. व्हाट इज सिमिलर, व्हाट इज डिफरेंट. लुक, cricket at the end of the day is part of our culture. किसी ने, आशीष नंदी एक सोशियोलॉजिस्ट है, अच्छा कहा कि ये गेम अंग्रेजों ने सीखी है. क्रिकेट इज एन इंडियन गेम एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश. ये वाकई हमारा एक खेल है. और पॉलिटिक्स जो है, इसमें हम बड़े खूबी से खेल पाते हैं. और पॉलिटिक्स भी एक तरह से खेल है, राजनीति भी एक तरह से खेल है. और हमारे देश में जो भी बाकी हो, ये तो हमें मानना पड़ेगा, कम से कम हम लोकतंत्र हैं. आज जब चीन के साथ हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं और चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, we must remember one thing: we are at the end of the day a democracy which China will never be. I can come speak to you here freely over Zoom. We can talk, criticize the government, we can question the government. In China, that cannot happen. And we sometimes take our democracy for granted. और मुझे लगता है ये हमें सोचना चाहिए, खास करके पत्रकार जो है. हम जब पत्रकारिता करते हैं, मैं समझता हूँ ये एकमेव देश है जिसमें मैं पत्रकारिता करता. मैं अगर चीन में होता तो कैसे पत्रकारिता करता, केवल सरकार की बातें रखता. और दुख की बात है, हमारे देश में भी अब कुछ पत्रकार और कुछ चैनल ऐसे बन गए हैं जैसे चीन के रेडियो के चैनल और चीन के टीवी के चैनल होते हैं. कुछ लोग उनको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उनको सुपारी मीडिया कहता हूँ. जो भी है,
हमारे लोकतंत्र में हमें बोलने की आजादी है, हमें सवाल रखने की आजादी है, जो चीन में नहीं है, जो दूसरे जो कट्टरवादी देश हो या डिक्टेटरशिप्स हो, there you cannot speak out. The difference between an India and a China is our democracy and our democratic spirit. And a key element of that is the freedom of the press. And I think it is something we should treasure and value. Let me tell you, when I joined journalism, मैं पत्रकारिता में 1988 में आया, 1988. तब इतने टीवी चैनल्स थे ही नहीं, बस एक दूरदर्शन हुआ करता था. तो अगर आपको टीवी पत्रकार बनना था तो बस दूरदर्शन ही था. I chose to be a print journalist. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आया और मुंबई में मैंने शुरुआत की, और वो बड़ा अलग जमाना था, कंप्यूटर भी नहीं था. When I started in the office, we only had typewriters. In fact, हमने कंप्यूटर का विरोध किया. हमारे जो यूनियन थी, प्रेस की यूनियन हमारे ऑफिस में थी, उन्होंने कंप्यूटर का विरोध किया. उन्होंने कहा कंप्यूटर के आने से लोगों की नौकरियां जाएगी. So we had a big agitation against computers. आप सोचिए, वहां से आज हम जमाने में आ गए जहां आपको सब आईपैड और मोबाइल पे मिलता है. 32 साल में दुनिया बदल गई. आज की तारीख में हमारे देश में करीब 400 टीवी चैनल हैं, 396 लाइसेंस, 396 लाइसेंस चैनल्स. अब आप सोचिए, उस जमाने में केवल एक दूरदर्शन हुआ करता था जो केवल सरकार की बात रखता था. आज 396 चैनल है जो हम कहते हैं प्राइवेट है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम प्राइवेट चैनल्स होकर भी सरकार की ही बात रखते हैं. हम कभी सरकार को आजकल सवाल नहीं पूछते हैं. ये सबसे बड़ा मुझे लगता है फर्क है कि हमारी जो आजादी है उसका कितना हमने फायदा उठाया. एक क्रांति हुई, there has been a revolution with all these numbers of channels that have come. But are we better informed? Do we know more? रोज रात को आप टीवी चैनल देखिए तो केवल एक दूसरे से लोग झगड़ते रहते हैं. इट्स लाइक अ फिश मार्केट. और फिश मार्केट में कम से कम मछली बिकती है, यहाँ क्या बिकता है? तो हमने टीवी को एक तरह से एक मछली का बाजार बना दिया है रात को, खास करके प्राइम टाइम में. हर चैनल, हिंदी हो अंग्रेजी हो, एक दूसरे पर चीखते रहते हैं. मैंने कल ही एक डिबेट किया इसी तरह से. एक तरफ संबित पात्रा था, दूसरी तरफ पवन खेड़ा. वो संबित पात्रा मुझे कहता है यू आर चाइनीज एजेंट. अब चाइनीज एजेंट क्यों? क्योंकि सवाल पूछता हूं. अब ये क्या बात है? अगर आप सवाल पूछे, कुछ लोग आपको कहते हैं गो टू पाकिस्तान, कुछ लोग कहते हैं यू आर चाइनीज एजेंट. सच पता है 30 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था. 30 साल आप 30 years ago you could criticize a politician, you could question a politician without being called a Chinese agent or said go to Pakistan. ये क्या हुआ है? We have become more intolerant. एक असहनशीलता हो गई है समाज में. लोग एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते. अगर आपकी मैंने कुछ कहा और आपको अच्छा नहीं लगा, मैं आपका दुश्मन बन जाता. क्या आप कहते हैं अगर मैं मोदी सरकार की प्रशंसा करूं तो लोग कहते हैं आप मोदी जी के तरफ बिक गए हैं. अगर मैं आलोचना करूं तो पीपल से अरे आप तो जो है वो तो आप मोदी विरोधी हैं. अब I think democracy, and this is why I think today is an important day. 75 में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की, और आज की तारीख में हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए. We have freedoms, but we must not misuse them. The freedoms that we have should be used responsibly. पत्रकार जो होता है उसका दायित्व है, ड्यूटी है एक तरह से, कि हम जो सच्चाई है लोगों के सामने लाएं. अब क्या चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है या नहीं, ये सवाल है. और ये सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है. हमें हम चीन की तरह नहीं है. अगर चीन के सोल्जर्स भी मरते हैं तो वो अपने ही नागरिकों को बताते नहीं है कि उनके कितने सोल्जर्स मरे हैं. That is the difference. And therefore we must understand the difference. पाकिस्तान के जब सोल्जर्स मरते हैं उनकी मिलिट्री उनको बताती भी नहीं है. हमारे देश में हम ये बात रखते हैं, ये हमारी मजबूती है. हम अपनी मजबूती को कमजोरी ना बनाएं. We must recognize that we have constitutional rights and duties, and we must value those constitutional rights and duties. And I just feel that the right to free speech under Article 19, संविधान में आर्टिकल 19 के जरिए जो हमारी जो आजादी है उसको वैल्यू करना चाहिए. तो मैंने जैसे कहा, मैंने शुरुआत की 1988 में. जमाना बहुत अलग था.
बहुत कम अखबार थे, कोई टीवी नहीं था, कोई ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आई रिमेम्बर इन 92 बाबरी मस्जिद गिरी 6 दिसंबर को, हमें खबर भी नहीं थी क्योंकि उस समय हमें कोई टीवी चैनल के जरिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। धीरे धीरे कुछ पिक्चर्स आने लगे अयोध्या से, और शाम तक होते हुए देयर वाज अ रायट इन मुंबई, और उस रायट कवर करने में बहुत मुश्किलात थी क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं थे। आज आपके पास इतने साधन है, कहीं भी जाकर आप अपने मोबाइल कैमरा के जरिए वीडियो लगा सकते हैं। आप जितने भी मुझे आज सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर सिटीजन जर्नलिस्ट, आप सब एक तरह से जर्नलिस्ट बन सकते हैं, अपने पिक्चर लोगों के सामने रख सकते हैं। तब ऐसा माहौल नहीं था, तब वो रायट कवर करने में बहुत कठिनाई हुई। कैसे लोगों के सामने रखे कि किस तरह से एक दूसरे को, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा हो रहा था, पुलिस क्या कर रही थी। And honestly, in all the 32 years that I have done journalism, it was the most difficult story to cover. क्योंकि ये मेरा बंबई था, ये मेरा शहर था, और वो आग में एक तरह से तब्दील हो गया था। तो the point is, life has changed. मैंने 93 में एक भूकंप कवर किया लातूर में। लातूर एक महाराष्ट्र में जगह है, वहां भूकंप हुआ था, और उस भूकंप को कवर करने में बहुत मुश्किलात हुई क्योंकि जितने भी टेलीफोन लाइंस थे सब कट हो गए, और तब कोई मोबाइल फोन भी नहीं था। तो वहां लातूर 200 किलोमीटर दूर था औरंगाबाद से। हम एक ट्रेन से औरंगाबाद पहुंचे, वहां से फिर लातूर जाना पड़ा, और वहां के पिक्चर्स वापस पिक्चर छोड़िए, वहां की स्टोरी वापस लाकर टेलेक्स मशीन के जरिए वो स्टोरी दिल्ली तक पहुंचानी पड़ी। It is it's a very difficult thing to do in those days. पत्रकारिता में आज बहुत सहूलियतें हैं, कंपटीशन बढ़ा है, ये बात भी सही है, लेकिन उस जमाने में जो मजा आता था एक तरह से वो अलग था, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज की कोई दौड़ नहीं थी कि हर स्टोरी जो है तुरंत लोगों के सामने रखे। हमें समय था अपनी स्टोरी एक तरह से रिकॉर्ड करने, कैमरा करने, लोगों के सामने रखना। एक अलग जमाना था 93, 94, 95 का। अब क्या हुआ है कि एवरीबॉडी टुडे इज इन अ रेस टू बी फर्स्ट। वो खबर सही है गलत है उससे कोई लोगों को परवाह नहीं है, चलो खबर डाल दो। और देखिए कितनी फेक न्यूज है, इसलिए एवरी डे ऑन व्हाट्सएप आपको कोई वीडियो मिलता होगा, मेनी ऑफ दोज वीडियोज आर फेक। मुझे किसी ने कुछ वीडियो भेजा विच टर्न आउट टू बी, कहा ये कोरोना के देखिए किस तरह से ये जो कुछ लोगों को दिखाया अस्पताल में, फिर बाद में पता चला ये कोई दिल्ली का अस्पताल नहीं था, ये पाकिस्तान में कराची में मेंटल असाइलम में कुछ हो रहा था, उसको वो लोग दिखा रहे थे कि दिल्ली में हो रहा है। सो फेक न्यूज हैज स्प्रेड अ लॉट। और क्या है कि आज व्हाट्सएप का जमाना है, आजकल जब भी कोई खबर मिलती है व्हाट्सएप कर देते हैं लोग, वेरीफाई तो करते नहीं है लेकिन दूसरों को, अपने दोस्तों को भेज देते हैं और वो खबर वायरल हो जाती है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये जो वायरल वीडियोस बन जाते हैं और किस तरह से लोगों को एक तरह से डरा लेते हैं कि ये सही है गलत है। कोरोना का जमाना है, अब कोरोना के जमाने में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, लेकिन कभी कभी हम लोगों को डरा देते हैं जिस तरह की बातें हम करते हैं या जिस तरह की गलत खबरें करते हैं। अब आपको मालूम होगा जब कोरोना शुरू हुआ तब कुछ जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनको कोरोना हो गया, उसके बाद जो प्रचार हुआ जैसे सब जो जितने भी कोरोना के लोग हैं कोरोना तबलीगी है। अब हमारे देश में 7 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस हो गए हैं, क्या वो सभी तबलीगी थे? लेकिन हमने उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया। जहां एक सब्जी वाला बेचारा मुसलमान था उसको भी लोगों ने भगा दिया, कहा नहीं तुम तो कोरोना से तुमसे सब्जी लेंगे तो हमें कोरोना होगा। क्या बात है? तो हमने दुनिया बदल दी है, हमने एक तरह से दुनिया इस तरह से बदल दी है कि फेक न्यूज को चला के हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आज आप देखिए हर भारतीय को लगता है कि हर पाकिस्तानी जो है टेररिस्ट है, क्योंकि हम क्या दिखाते हैं, केवल जो पाकिस्तान जो है टेररिस्तान है। हाँ पाकिस्तान में मसूद अजहर है, कई लोग हैं, लश्कर है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट द एवरेज पाकिस्तानी?
What is the role of the media? Should we only show the bad side of Pakistan? Should we not show positive stories? They are our neighbors, and we cannot change our neighbors. हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते इस तरह से. लेकिन हमने इस तरह का जमाना किया. मैं तो कभी कभी कहता हूं कि जंग टीवी स्टूडियो में हो जाएगा. जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के जनरल एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, मुझे लगता है जंग टीवी स्टूडियो में हो जाएगा. तो मीडिया की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेक न्यूज को किस तरह से दूर रखें, और टेक्नोलॉजी के जमाने में, और ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक व्हाट्सएप करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंच जाता है. तो अगर वो व्हाट्सएप गलत निकला तो फिर क्या? कितनी गलत खबरें भी हम लोगों के सामने रखते हैं, खास करके व्हाट्सएप के जरिए. तो आई थिंक वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम्स एज अ जर्नलिस्ट, और ये जमाना जहां मैंने जैसे कहा 1988 जब मैंने ज्वाइन किया, केवल टाइपराइटर था, कंप्यूटर भी नहीं था. To today where everything is on mobile, we have WhatsApp. The nature of information has changed. पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं बदली, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है. हमारी जिम्मेदारी वही है जो 1988 में थी, लोगों के सामने सच्चाई लाना. और ये जिम्मेदारी आसान नहीं है. Today there are 396 channels. अब किसी ने एक चैनल पर कुछ ब्रेकिंग न्यूज देखती ली, they put it on air without verifying. कंपटीशन की दौड़ है. लोग ये नहीं जानते कि किसी के घर में एक या ज्यादा से 2 टीवी सेट है. हमारे न्यूज रूम में 100 से ज्यादा टीवी सेट है, इसलिए हम इतने चैनल देखते हैं. लेकिन आपके घर में 1 या 2 ही चैनल है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, अरे वो चैनल पे ये चल रहा है, इस पर ये चल रहा है. और उस दौड़ में हम अपनी जो जिम्मेदारी है वो भूल जाते हैं. और इसमें बहुत नुकसान कभी कभी होता है, बहुत नुकसान. क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी हम गलत खबर इसी में चला लेते हैं कि हमने किसी और चैनल में देखी. अभी मुझे याद है एक बार हमने एक खबर चलाई थी कि किसी एक व्यक्ति की मौत हुई है. बाद में पता चला वो जिंदा है. वो खबर हमने क्यों चलाई? क्योंकि हमने किसी दूसरे चैनल पर देखी. तो this is the dangers of journalism in the age of this instant news. Everything is like instant coffee, instant noodle. उसी तरह फास्ट फूड, आजकल मैकडॉनल्ड्स का जमाना है. उसी तरह से पत्रकारिता भी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की तरह बन गई. तुरंत चलाओ. Who is the fastest? Not who is the most accurate or who is right. मुझे लगता है ये इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें सोचना चाहिए कि किस तरह की पत्रकारिता अब होनी चाहिए, किस तरह के पत्रकार हम बनना चाहते हैं. और ये बहुत ही बड़ा सवाल है क्योंकि पत्रकारिता भी एक व्यवसाय बन गया. इट्स अ बिजनेस टुडे. इट्स अ मल्टी-crore बिजनेस. एक जमाने में लोग कहते थे हम जर्नलिस्ट बन गए क्योंकि हम एक तरह से, वो एक प्रोफेशन नहीं था, हमारे लिए पैशन था. आज वो पैशन प्रोफेशन बन गया है और उस प्रोफेशन के साथ वो बिजनेस बन गया. नाउ इट इज अबाउट रेटिंग्स. इट्स अबाउट कौन सी खबर चलेगी, नॉट अबाउट वेदर द न्यूज इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट. क्या दुनिया को उससे फर्क पड़ेगा? वी टेंड टू डू स्टोरीज दैट आर सेक्सी, है ना, जिसे कहते हैं. उसमें उस स्टोरी की सेक्स अपील क्या है, वो दर्शक देखेगा या नहीं. And I think we have to be very, very careful when we look at that, therefore. Very, very careful. And unless we show the required care, ऐसा है कि पत्रकार वैसे आज चाहे तो शाहरुख के घुटने में क्या हुआ है, शाहरुख खान की खबर वो हेडलाइन बन जाती. But how are the disabled facing corona? I know that George has been raising this issue. वो खबर हेडलाइन नहीं बनती है, even though more people are affected by that story. But how is Shahrukh Khan dealing with the lockdown? या सुशांत सिंह राजपूत पर हम दिनों पर दिन स्टोरीज करेंगे. What happened to him is tragic, but दिन पर दिन stories. Imagine how much effort is being put into those stories, and we are missing out on the real stories. आज कोरोना की वजह से कम लोग अस्पताल की स्टोरीज कर रहे हैं, पर हमारी अस्पताल की दुर्दशा कई सालों से है. But we were never making it a headline.
hospitals, education, science and technology, environment. These are the issues of the future. पर इन पर कहाँ बहस होती है? बहस होती है धर्म पर. एक हिंदू एक तरफ रखो, मुस्लिम रखो, दोनों के बीच में झगड़ा करो, या एक तरफ कोई यादव रखो, दूसरी तरफ कोई नॉन यादव रखो, उनमें झगड़ा करो. Caste, community. That's because our politics is fought like that. Unfortunately, our politicians also have invested very, very little time in the real issues of the time. And that is why there is so little investment, for example, in public health. आप मुझे बताइए, आपने कितनी खबरें इसके पहले देखी है, हमारे जो अस्पताल की क्या दुर्दशा है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? Which is the state which is doing the best today in the corona fight? Kerala and Karnataka. Why? Because they have invested in public health. They have not invested in fighting now on caste and community. वो वहां इतने मंदिर और मस्जिद बनाने में नहीं लगे हैं जितने यहाँ हम लोग आजकल बात करते हैं. आप मुझे बताइए मेरे दोस्त, क्या बनना चाहिए? स्कूल्स बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, या मंदिर मस्जिद बनने चाहिए? इस देश का फ्यूचर किसमें है? Now, as journalists, I think we must also change the dialogue and force our leaders to talk about these issues. क्योंकि जब तक हम नहीं बात करेंगे तब तक कैसे लोगों तक वो खबर पहुंचेगी? How do we genuinely provide information to people? And I think that is the challenge of our times. How do we provide accurate information to the maximum number of people? And I think unless we are able to do that, we are trapped. हम एक जाल में फंस गए हैं. रोज वही खबर वही चेहरों से नहीं चलेगा. हमें खबरों को एक नए अंदाज से लोगों के सामने रखना पड़ेगा, और आप लोगों को भी हमें एक तरह से एक नए, we have to have a new relationship between viewers and journalists. क्या है, आज सोशल मीडिया पर कुछ भी लोग कह देते हैं. You can say what you want on social media. No control. Facebook पे कुछ लिख दिया, किसी ने ट्विटर पे कुछ लिख दिया. उस पे सच्चाई कितनी है, इस पर सवाल है. And my belief is that journalists' basic challenge is to provide the truth without any pressure, without any fear. बगैर डर. डर के आगे जीत है. हमें डरना नहीं है. हमें we have to show truth to power. जो बड़े बड़े व्यक्ति है उनको आईना दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है. अब कितने लोग वो जिम्मेदारी, मुझे लगता है, उसको पालन करते हैं, ये सवाल है. I really don't know. But the world, my friends, as a journalist today, I feel कि इतने सालों के बाद मैं देख रहा हूं कि नए पत्रकार जो हैं वो भी, उनमें उनके पास साधन बहुत हैं, but they are not being given the kind of training that we need. उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती. अब ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए? कम से कम जिंदगी की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए. किस तरह से हम लोगों को हमदर्दी दिखाएंगे, इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए. ट्रेनिंग का मतलब है जिंदगी में ट्रेनिंग. लाइफ इज द ग्रेटेस्ट ट्रेनिंग. लाइफ ट्रेन्स अस, द जर्नी ऑफ लाइफ, एंड वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड विद द विक्टिम्स. Whether it is a migrant who has lost his job or her job, whether it is someone who's a victim of domestic violence, we have to stand with the victim, not with the powerful. If you stand with the powerful, you may get other benefits. But it is when you stand with the victim that I believe you are a true journalist. And that is, to my mind, the challenge of our times, for journalism to stand with the victims, not with the powerful. The powerful have to be questioned. Our fundamental role as journalists is to ensure that those who do not have a voice, जिनके पास आवाज नहीं, उनको हम एक आवाज दें. ये हमारा दायित्व बनता है. मैं ये नहीं कह रहा आज आपके साथ बैठकर कि मैं ये सब खुद कर पा रहा हूं. मेरी भी कमियां हैं, मेरी भी कमजोरियां हैं, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं. आज मुझे अगर आप में से कोई एक अच्छी स्टोरी दे, मुझे जरूर बताएं, मुझे ईमेल करें. मैं कोशिश करूंगा कि वो स्टोरी लोगों तक पहुंच पाए. मैं चाहता हूं कि स्टोरीज इस तरह से हो टीवी पर जिससे दुनिया में छोटा सा कोई फर्क पड़े. मैं रोज रात को जब 9 बजे की न्यूज करता हूं, आई ट्राई एंड एंड विद व्हाट आई कॉल अ गुड न्यूज स्टोरी, एक अच्छी खबर. क्योंकि देश में आप जानिए, अच्छे लोग बुरे लोगों से ज्यादा है.
हम लोगों की बुराइयां टीवी पर दिखाते हैं, अखबार में दिखाते हैं, लेकिन असलियत इस देश की है कि अच्छे लोग बहुत हैं। और जब तक वी डोंट डू मोर गुड न्यूज स्टोरीज, हाउ विल वी स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुड न्यूज? सो द चैलेंज इन अ वे एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, इज टू स्प्रेड गुड न्यूज। लोगों तक अच्छी खबरें किस तरह से ले जाए, एंड आई थिंक दैट in its own way can make a difference in a small way to society. So I've given you a sense of what is the role of a journalist, what are the journalist's responsibilities, and I'm saying this all with the hope that maybe tomorrow we will see a better day. कल फिर सुबह होगी। मैं हमेशा कहता हूँ ये देश जो है 50-50 देश है। ये जो ग्लास आपका है इसमें आधा पानी भरा हुआ है या आधा खाली है। आपको तय करना है किस तरह का देश हमने बनाना है। मुझे लगता है जो देश बनना चाहिए उसमें ग्लास आधा हमेशा भरा रहना चाहिए। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना है। We have to be positive about the future, and that to my mind is the challenge of the time. Journalists have to expose what is wrong, but do it with a positive spirit, because I believe that the good will overcome the bad. जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों को हमेशा हराएंगे। As a journalist, all I can say is that it has been a great journey. 32 सालों में बहुत मजा किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत लोगों से सीखा, बहुत लोग मिले हैं। People ask me what is the best thing about being a journalist. I say best thing is it's not a 9 to 5 job. 9 से 5 नहीं. We don't know what tomorrow will bring. कल क्या होगा, कौन जाने कहाँ कौन सी खबर होगी, especially in a country like India. So that, to my mind, that excitement of what tomorrow will bring is what keeps me going as a journalist after these years. I'll tell you at the end what R.K. Lakshman, जो बड़े कार्टूनिस्ट हुआ करते थे अपने जमाने, उन्होंने 40 साल एक कार्टून बनाया, बस उतना ही करते थे रोज सुबह, और मेरे बगल के कमरे में बैठते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो मैंने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी आपको कभी नहीं लगता इतने रोज वही कार्टून करते, कभी आपको थकान नहीं होती? डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ डूइंग इट? ही सेड, राजदीप, एवरी डे is like a new day. Every day is like a new day. Every day is like I am drawing my first cartoon. Every day मुझे लगता है मैं मेरा पहला कार्टून ड्रॉ कर रहा हूँ, and that is what keeps me going. Hello. And I think that is a very good attitude to have. Somebody just sent me, they wanted my email. My email, my friends, is rajdeepsardesai52 rajdeepsardesai52 ये मेरा एज नहीं है 52, ये मेरा घर का नंबर है। पर rajdeepsardesai52 आपके पास कोई भी स्टोरी हो, अच्छी स्टोरी हो, जरूर भेजिए। अगर मुझे लगे उस स्टोरी में दम है तो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर आपसे कहता हूँ, जॉर्ज साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई वुड लाइक टू टेक मोर क्वेश्चंस टुडे, एंड मे बी पीपल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट जर्नलिज्म। प्लीज हेलो, नमस्कार सर। Hello. Hello. Sir, this is... Hello. Sorry to interrupt. Thanks, Rajdeep, first of all, for that very insightful talk. I'm going to come to you one by one, everyone, to take questions, because otherwise there'll be chaos, right? I can see some of you have already raised hands. So, Rajdeep, I'll go one by one. Sure. Yeah, I'll tell you. 1 second. Hello. Yeah, who's this? Hello. Yeah. Please मेरा नाम विशाल झा है। हाँ विशाल, पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल का छात्र हूँ। कहाँ का? पत्रकारिता का छात्र हूँ सर। मैं अभी मैं सेकंड ईयर में अपनी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के हूँ। कहाँ कर रहे हो? आईपी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। वेरी गुड। आईपी यूनिवर्सिटी से सर। बताओ। हाँ सर, मेरी फ्रेंड अभी श्रेया है जो, हाँ सर, मेरी फ्रेंड श्रेया त्रिशल अभी मौजूद नहीं है क्योंकि उसका फोन ऑफ हो गया, तो आप एक बार उसे हाय बोल दीजिए। हाय श्रेया त्रिशल। सर मैं सवाल हाय श्रेया, हाउ आर यू? ओके, फील गुड। हाँ सर, तो मेरा सवाल ये है सर आपने जैसा कि कहा कि आजकल का जर्नलिज्म है जो कि नेताओं के अंदर चल रहा है, और ये बहुत हद तक सही भी है, इसको मैं भी खुद महसूस करता हूँ। आजकल के जो पत्रकार है वो चाटुकारिता की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। वो लोग फैक्ट को कवर नहीं करते हैं, और जो उनको बोला जाता है या जो उनकी स्क्रिप्टिंग आती है वो लोग वही कवर करते हैं। सर ऐसे में मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो आप
ऑफिस पॉलिटिकल के बारे में जानते होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कल न्यूज रूम में जाता हूँ, न्यूज मीडिया रूम में जाता हूँ, वहां पे जो स्क्रिप्टेड आती है, वहां पे जो न्यूज पैकेज आता है कि तुम्हें इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, तुम्हारी कंडीशंस यही है, तो उसमें आपको नहीं लगता कि एक जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है वो मर जाएगा? वो तो अपने डिबेट में वही पूछेगा जो उसे चैनल्स की तरफ से बोला जा रहा है। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, पत्रकार जब आप जैसा यंग हो, कॉलेज से आ रहा हो, आदर्शवादी होता है, आइडियलिस्टिक होता है, चाहता है कि मैं कुछ अच्छी पत्रकारिता करूं। लेकिन सिस्टम जो है, चैनल जो है, वहां के जो बड़े बॉस हैं, वो आपको उस तरह की पत्रकारिता शायद करने ना दे। लेकिन हर व्यक्ति में, लेकिन मैं समझता हूँ वो क्षमता होनी चाहिए, वो अपने आप, अपनी काबिलियत में विश्वास होना चाहिए कि किसी भी जगह आप अपना छाप छोड़ सकोगे। और आज जानिए, आप खुद अपना ब्लॉग लिख सकते हो। यू कैन डू योर ओन थिंग टुडे। यू कैन बी अ ब्लॉगर, यू कैन बी अ राइटर ऑन योर ओन, यू कैन हैव योर ओन वेबसाइट। आपकी खुद की वेबसाइट आप बना सकते हैं। और अगर आप चैनल में भी हैं तो मैं 24 घंटे के चैनल में आपको जरूर कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की जगह मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो फिर आपको आजादी है कि आप कुछ और करें। मैं आपको आज ये नहीं कहूंगा कि केवल आप पत्रकार बने, आप कुछ भी बन सकते हैं, अच्छे इंसान बनिए। लोग मुझे पूछते हैं व्हाट इज द क्वालिटी टू बी अ गुड जर्नलिस्ट। तो ऐसे देखिए, जर्नलिस्ट बनना अच्छा बुरा वो तो बात छोड़िए, पहले अच्छे इंसान, ये बाकी की बात है। बीइंग अ गुड जर्नलिस्ट, बैड जर्नलिस्ट इज नॉट द इशू। द रियल इशू ऑफ द टाइम्स इज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। दैट इज द चैलेंज ऑफ आवर। सर, ये बात है कि अगर कोई मोदी सरकार के पक्ष में बोले या फिर तो वो देशवादी हो जाएगा, वो राष्ट्र प्रेमी हो जाएगा। कोई मोदी सरकार के विपक्ष में बोले तो उसे राष्ट्रदोषी करार दे दिया जाता है। राष्ट्रदोषी तो सर बहुत बड़ा वर्ड है, तो वो अगर ऐसे सरकार के खिलाफ जाना, राष्ट्रदोषी बोल देना, ये अपने आप में सही नहीं है आपके हिसाब से? उस इंसान पे क्या बीतेगी? क्या वो आवाज उठा पाएगा? और उससे जो रिलेटेड लोग होंगे वो भी अपनी आवाज दबा देंगे। आज कितनी आंगनवाड़ी सुविधाएं हमारी बंद पड़ी हुई है। आज की तारीख में अगर आपको कोई देशद्रोही कहे, आप इसको सर्टिफिकेट मानिए। आप कोई, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप सवाल पूछने के लिए आपको देशद्रोही कोई माने तो यू शुड ट्रीट इट एज अ सर्टिफिकेट एंड फील प्राउड ऑफ इट। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Just 1 second, I'll come to you. Just 1 second. हाँ, नमस्कार सर, एक मेरा प्रश्न है। रमाकांत जी, 1 मिनट रुकिए, एक एक करके चलते हैं, ठीक है? हाँ जी, जी मैडम। आपसे पहले जो बोल रहे थे, आप बोलिए जी, अपना सवाल करिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी। This is Harsh Kumar from, I am pursuing journalism from Jamia Millia Islamia. Yes. सर, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट कि सर, जिस तरीके से जो न्यू जर्नलिस्ट जो कोर्स अपना पूरा करके मीडिया में जॉब के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इवन इंटर्नशिप लेने के लिए भी एक सिफारिश की जरूरत पड़ती है, यानी कि गॉडफादर कोई ना कोई नोन होना चाहिए। इसको लेकर के आप क्या टिप्स देंगे? किस तरीके से मीडिया मैं नहीं मानता इस गॉडफादर सिंड्रोम को। आज हमारे यहाँ आज तक के जो एडिटर है सुप्रियो प्रसाद, वो दुमका से आते हैं, छोटा शहर है झारखंड से, वो वहां एडिटर बन गए। देखिए, अगर आप में काबिलियत हो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आप जान लीजिए। ये सिफारिश का जमाना है, या सिफारिश का जमाना हुआ करता था। कुछ लोग सिफारिश से आगे बढ़ गए, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं अपनी काबिलियत पर आते हैं आज, और छोटे छोटे शहरों से भी आ रहे हैं। ये मैं नहीं समझता कि केवल बड़े शहर में सिफारिश से केवल आप पत्रकार नहीं बन सकते। सो डोंट फील दैट दिस इज, आई नो आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत मैं देखता हूँ इवन इन बॉलीवुड देयर इज होल डिबेट ऑन नेपोटिज्म, बट द फैक्ट इज दैट इन रियल लाइफ एट द एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, व्हाटएवर, कोई भी प्रोफेशन। तो आपको अपनी काबिलियत में विश्वास रख के आगे चलिए। थैंक यू सर। Rajdeep, Agnes from Bangalore is asking, we have different audiences viewing the news. So how would you, or in what way do you cover what is important? You know, I think that's a very good question, Agnes. The fact is that, you know, we have a 24-hour news channel. My problem is that we seem to play the same news again and again. Now, my bigger problem is this. If in Delhi there is a small drain which has overflowed, it will become breaking news. If there are floods in Meghalaya, they will not become breaking news. Northeast is completely out of our imagination at times. I think the challenge for all media organizations is to realize we live in not just a country, but a subcontinent called India. You are in Bangalore.
I think the news of Bangalore today, exams are being conducted in Bangalore, while in the national capital, ICSE, CBSE exams have been cancelled. Both are important stories. The fact that some exams have been cancelled, but also in another place exams are going on. So we need to be very clear. Just because we are located in Delhi, we cannot claim to be a national news channel. A national news channel must realize we are in a country with 29 states and 7 union territories. That is the real question. Hello, Hello. sir. Yeah. Yes. Hello. Hello. Hi. Yes. Yes, sir. My question is कि मैं आपकी नेता नगरी पे रेगुलरली देखता हूँ. क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोहेर खेरीवाला मुंबई से हूँ सर. हाँ सर. तो सर आज मेरा एक क्रिकेट से रिलेटेड एक मतलब जर्नलिज्म से और क्रिकेट से रिलेटेड सवाल है कि सपोज सचिन तेंदुलकर 90 पे बैटिंग कर रहा है और एलबीडब्ल्यू आउट हो गया जी. तो आज का रिपोर्टर, आज का जो जर्नलिस्ट है वो मतलब पहले का जो जर्नलिस्ट है उस तरीके से बताएगा कि भाई वो मतलब एक अच्छी गेंद के ऊपर वो फ्रंट फुट पर खेलने गए और उनके पैड से बॉल टकराया, वो आउट हो गया. पर आज का रिपोर्टर उसको इस तरीके से बताएगा कि 90 रन के साथ सचिन तेंदुलकर को बहुत जल्दी थी कि अपने 100 बनाए, इसके लिए वो फ्रंट फुट पे आया और बहुत हल्की गेंद को अपनी टेक्निक को भूल के उसने उस गेंद को हिट करने की कोशिश की और उससे पैड पे टकरा गई. तो हम सर आज रिपोर्टर नहीं मिल रहे, हमको सब ओपिनियन क्रिएटर्स मिल रहे हैं. हम सब जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं पर रिपोर्टर कोई नहीं बनना चाहता. तो सर हमको अच्छी बात आपने कही है और ये बिल्कुल सही बात है. और दूसरा सवाल ये है कि इम्पार्शियल जर्नलिज्म के लिए हमको सब मीडिया को पब्लिक फंडेड नहीं कर देना चाहिए. बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस से हम लोग जो फंड लेके मीडिया चलाते हैं, इससे अच्छा पब्लिक फंडिंग पे जो मीडिया चले वो ज्यादा इम्पार्शियल नहीं होगा. देखिए, पहली बात जो आपने कही पब्लिक फंडिंग की बहुत ही अच्छी बात है और कुछ कोशिश हो रही है कि पब्लिक फंडिंग के जरिए एक ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया बने. अगर आप निष्पक्ष बनना चाहते हैं तो पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है और इसको जितना हम आगे बढ़ा सकें, लेकिन आसान नहीं है. खास करके टीवी के लिए बहुत पैसे लगते हैं, इसलिए पब्लिक फंडिंग केवल के जरिए आप कर पाए ये बहुत इस पर बड़ा सवाल है, लेकिन इस दिशा में जाना चाहिए. आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग सब ओपिनियन मेकर्स बन गए, रिपोर्टर कम. ये आपकी बात सही है, ये इसमें हम सब फंस गए, मैं भी उसमें फंसा हूँ एक तरह से. लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी रिपोर्टिंग होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती. लेकिन सवाल ये है कि केवल आप टीवी के जरिए मत देखिए पूरे मीडिया को. आज डिजिटल भी है, आज कई ब्लॉग साइट्स है, कई अखबार हैं जो अभी भी रिपोर्टिंग करते हैं. आप अगर सुबह के अखबार देखें, ज्यादातर फ्रंट पेज पर आपको खबरें ही मिलेगी, आपको ओपिनियन नहीं मिलेगी अखबार में. ये टीवी पर हुआ है कि हर चीज को डिबेट में बनाना, और क्योंकि डिबेट में आपको झगड़ा करवाना है इसलिए वो ओपिनियन स्टाइल बन जाता है. मैं हमेशा कहता हूं लोगों को अखबार जरूर पढ़िएगा, आप टीवी देखे ना देखे वो आपके ऊपर है, लेकिन अखबार हर सुबह अपने चाय के प्याले के साथ जरूर पढ़िएगा, तब आपको खबर की अहमियत पता चलेगी. हेलो. Hi. हाँ जी, hello. This is Aziz from Ahmedabad, and Yes, I needed a question regarding. So you covered 2002 riots, and I have read some excerpts of your book, which you wrote after 2019 election, the Yes. making of Mr. Modi as a prime minister. In that thing, I wanted to ask so in this time when the media is polarized, and हम लोग ऐसे मजाक में काफी दफा कहते हैं दोस्त लोग कि in the mainstream media, so-called mainstream media, popular media, only you and Ravish Kumar are the journalists, others are just sellers of like. Anyways, that's not the issue. That's not the question. My question is that at the time when polarization is happening, how do you see the role of journalism in future? Like, what do you see the role of journalism in future? And another question which I wanted to ask. Sorry. Another question which I wanted to ask is that at the time when there are very few reporting has been done on disability issues on this during this pandemic, like lockdown, because it has came with their own challenges as far as the differently abled people are concerned. So what can be the solution for the same according to you, and what is the lacking? If you Look, can. let me answer the second question first about differently abled and journalism. A great friend of mine used to be Javed Abdi.
द लेट जावेद आब्दी, जिन्होंने डिसेबल्ड राइट्स के लिए बहुत काम किया था, और मैंने उनके जरिए देखा कि जो स्पेशली एबल्ड है उनके लिए किस तरह से मीडिया में उतनी जगह नहीं है जितनी होनी चाहिए। और मैंने अपने तरफ से छोटी कोशिश हमेशा की है। बीच बीच में मैंने कोरोना को भी लेकर, हमारे रिपोर्टर्स ने 2-3 ऐसे स्टोरीज किए हैं जो परेशानी डिसेबल्ड लोगों की है, लेकिन मैं मानता हूँ इसे हमने हाईलाइट करना चाहिए और उस तरह से हाईलाइट नहीं किया है। लेकिन जब जावेद आब्दी डिसेबल्ड राइट्स के लॉ के लिए लड़ रहे थे, हमने उनको काफी सपोर्ट किया था और उसका थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर पड़ा। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि किस तरह का what is the future of journalism? I think the future of journalism has to be what somebody earlier said. We need a combination of strong publicly funded journalism, यानी जहां कॉर्पोरेट हाउस का दबाव ना हो, उसे केवल आप बिजनेस ना देखें. We need that public funded journalism, and I think we will find over time that because of technology, public funding married to technology will create new platforms of the future. तो मुझे अभी भी विश्वास है कि हम एक नई पत्रकार, जैसे मैंने कहा, ग्लास शुड बी आल्सो ट्रीटेड एज हाफ फुल, आधा भरा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आज यहाँ बैठकर मैं चैनल चला सकता हूँ, मुझे ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है. तो टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग अस क्लोजर टुगेदर एंड मे बी रीडिफाइन जर्नलिज्म इन अ वे दैट वी कैन नॉट इमेजिन एट द मोमेंट. हेलो राजीव सर, हेलो दानिश बोल रहा हूँ. मेरा नंबर बहुत दिनों से नहीं आ रहा है जी सर. मैं दानिश महाजन हूँ, रेडियो डांस से हूँ, मैं डिसेबिलिटी जर्नलिस्ट हूँ सर. मेरे दो सवाल है आपसे. आपको नेता नगरी में हम बहुत सुनते हैं, और लेटली राहुल कमल सर के साथ जो आपका एग्रीइंग टू डिसएग्रीइंग था, बड़ा मजेदार था. और एक्चुअली आपको और राहुल सर को सुनने में बहुत मजा आता है, ना तो अर्नब को सुनने में मजा आता है, ना रविश कुमार को, क्योंकि वन साइडेड है, बोर हो गए. तो आप लोग बैलेंस बात करते हो तो बहुत मजा आता है. मेरे क्वेश्चन आपसे दो हैं सर. एक तो ये कि जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी है, आपने कहा कि हम हमेशा जो विक्टिम होते हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विक्टिम है वो डिसेबल्ड कम्युनिटी है. आपने ये बात सही है कि आपने 1-2 डिस्कशंस की हैं. मैंने आपकी डिस्कशन सुनी है, मैंने पैनल डिस्कशन डिसेबिलिटी के ऊपर, आपने ट्राई किया है, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं. क्योंकि अगर आप चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं अवेयरनेस, आप बहुत हाई लेवल पे कर सकते हैं, आप कुछ भी सेंसेशनल बना सकते हैं अगर आप चाहें. तो क्यों लोग जो डिसेबिलिटी को लेके, जो मीडिया हाउस है वो सेंसिटिव नहीं है, जबकि जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी है. मेरा दूसरा सवाल ये है कि मोदी जी आपके दोस्त थे, तो क्या रीजन है कि अभी पीएम बनने के बाद मतलब आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे? और एक जो चैलेंज मेरे को लगता है मीडिया के सामने ये है सबसे बड़ा, कि जो नेता लोग हैं बायकॉट करना शुरू कर दिया अब उन्होंने चैनल्स का. तो कहीं ना कहीं चैनल्स को भी ये रहता है कि अगर ये नहीं आएंगे तो लोग सुनेंगे नहीं. जैसे बीजेपी एनडीटीवी पे नहीं जाती, कांग्रेस रिपब्लिक पे नहीं जाती. तो क्या ये भी कारण है कि थोड़ा बहुत मिलके रहना पड़ता है उनके साथ कि भैया चलो आप आओ, थोड़ा अपना व्यू रखो? आपने बड़ी बात कही. यू सेड अ वेरी बिग थिंग कि आजकल हर पत्रकार डरता है कि अगर मैं किसी नेता को क्वेश्चन करूं तो क्या वो नेता मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे. मैं किसी नेता का दोस्त नहीं था, मोदी जी के साथ संबंध ठीक ठाक थे, लेकिन अब उनको लगता है या उनके जो नजदीक लोगों को लगता है मैं उनका विरोधी हूं तो इंटरव्यू नहीं देते. और ये मुझे लगता है दिस इज द प्रॉब्लम, वी हैव बिकम इनटॉलरेंट. हम एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, और ये पत्रकारों के बीच भी एक डर है कि अगर हम किसी की आलोचना ज्यादा करें तो फिर वो हमें इंटरव्यू नहीं देंगे. हम भी बढ़ गए, समाज बढ़ गया मेरे दोस्त, समाज बढ़ गया है, पत्रकार ही नहीं समाज बढ़ गया है. एंड दैट इज द ट्रेजेडी. वी हैव टू, उसका क्या करें, मुझे कोई उसका उपाय नहीं है. आपने यू स्पोक अबाउट डिसेबल्ड राइट्स. लुक, I think, for example, we must have programs that perhaps have opportunity for those who are visually impaired to maybe participate in programs. वो करना पड़ेगा. मैं नहीं कह रहा कि हम कर रहे हैं, पर मुझे लगता है एक ना एक दिन हमें करना पड़ेगा. Now there are more and more channels that are carrying programs where you have for the speech impaired. For those who are speech impaired, they are carrying on the side. I see it, particularly on Doordarshan, I see it. And I'm also seeing some private channels now doing it. I see abroad it's happening all the time. I think that is a good first step. Kam se kam, we should be able to show to people who may not otherwise be able to hear an opportunity to see the TV, and to at least follow the news. So I think
For example, I am very clear that I want my book now, which I have written 2019. I'm trying to get it done in Braille, so that people can read it. I want more and more people to read the book. We are also doing audio books now. My book will be an audio book, so you can listen to it. So we are making in our हमने own e-text small में पढ़ी है आपकी किताब सबने. Your book is already in accessible format. We have read that in on audio. e-text. No, E-text. see, E-text. we can read in audio books. We can also use screen readers and read e-text. E-text format. Okay, E-book so we have I'm read. glad to know that it is in that format, because my aim is, again, we have to break these barriers. Why should someone who's visually impaired not be able to access a book? I hope that will change. I think this is all about sensitivity. हमें sensitize लोगों को करना है. You see, the problem is we have not sensitized people, and that's why there's a problem. I see there's someone called Rishi Rumta who's saying, I want to ask a question. Ramakant can ask, and then you can ask Rishi. Ramakant, go ahead. हाँ, नमस्कार सर, मैं रमाकांत सिंह चंदेल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से. हेलो. हाँ जी रमाकांत जी. हाँ जी, नमस्कार सर. मैं मेरा ये मतलब जानना था सर, मुझे आपसे कि अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, आजकल के जो पत्रकार साथी हैं उनमें परोपकार या जो सहृदयता का गुण कितना है और कितना होना चाहिए? क्योंकि पहले के समय में जैसे हम सुनते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो पत्रकार थे स्वतंत्रता संग्राम के समय में, उस समय निषेध था कि किसी जो क्रांतिकारी है उसके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा हो तो उसमें शामिल होना भी एक अपराध समझा जाता था. लेकिन उन्होंने ठाकुर रोशन सिंह की पुत्री का कन्यादान किया था अपने बिहाफ पे. ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हो गई थी और कोई तैयार नहीं हो रहा था, आगे नहीं आ रहा था. लेकिन आज वो जज्बा कितना है, या केवल समाज के सामने शो अप करने के लिए, हाईलाइट होने के लिए है? आप मतलब क्या मानते हैं और क्या होना चाहिए? सर, मेरे दोस्त, स्वतंत्रता संग्राम की बात ही मत करिए. वो अलग जमाना था, अलग लोग थे. उनमें जो क्राइसिस तो आजकल भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा आता ही होगा. देखिए, क्राइसिस हमारे समाज में मॉरल क्राइसिस है. टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंटेड बहुत लोग हैं. हमारे जो यंग पत्रकार हैं बहुत टैलेंटेड है. हाँ जी. लेकिन एक मॉरल क्राइसिस आ गई, और ज्यादातर जो लोग जो चैनल चलाते हैं या अखबार चलाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो व्यवसाय की तरह उसे देखते हैं. हाँ जी. अगर आप किसी चीज को व्यवसाय की तरह देखें तो वो पैशन, वो जज्बा कहाँ आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल जी. वो जज्बा तभी आएगा जब आप इसे पैशन की तरह देखें, आप उसे केवल एक व्यवसाय न देखें. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये हमने उस जमाने के नेताओं में देखा, पत्रकारों में. महात्मा गांधी पत्रकार थे. हाँ जी. यंग इंडिया में लिखते थे, उनकी बातें रखते थे. जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखी, बुक लिख दी. हाँ. आज कोई नेता लिख पाएगा? सवाल ही नहीं उठता. जी. ऋषि. हेलो राजदीप सर, मैं आपका नेता नगरी वाला प्रोग्राम बहुत सुनता हूँ. हर वीक वेट करता हूँ कि वो प्रोग्राम आ जाए, और सौरभ सर के साथ तो आपका जो रैप है बहुत ही सही लगता है सर. थैंक यू सो मच. और सर, मेरे 2 सवाल थे सर. पहला तो ये कि अभी जो मीडिया में ये ट्रेंड देखा जा रहा है, चाहे आप इसको गोदी मीडिया कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, तो ये जो ट्रेंड देखा जा रहा है, ये कुछ 3-4 सालों में अचानक से तो बदल नहीं गया है. तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी, पिछले 30-32 सालों का एक्सपीरियंस है सर आपको, तो आपने ऐसा क्या देखा कि हमारा मीडिया डेमोक्रेसी होने के बावजूद ऐसे कैसे बदल गया, ऐसे झुक कैसे गया, उसका एक धरा. दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि मीडिया में सच को रखना भी बहुत मुश्किल हो चुका है. आपके साथ भी बहुत मुश्किल हो चुका है, और सभी के साथ ये प्रॉब्लम देखा जाता है. जो भी बात रखने की कोशिश करते हैं उनके साथ कई दिक्कतें आती है. कई लोगों के ऊपर तो FIR भी है, जैसे मिड डे मील वाला इंसिडेंट हमने देखा था यूपी में. तो सर, इस मोमेंट पे सच को रखना, खासकर कि इस दौर पर आकर, कितना मुश्किल है, और आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं? क्योंकि एक मेंटल हेल्थ का भी इशू आता है जब किसी को देशद्रोही कह दिया जाता है, या किसी को, अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि चाइनीज एजेंट भी कह दिया जाता है, तो सबके लिए वो टैकल करना मुश्किल होता है सर. तो आप कैसे उसको टैकल करते हैं? मैं दूसरे सवाल का पहला, I will answer your first question.
I will answer your second question first. When you are called a Deshdrohi or Chinese agent, how do you deal with it? I listen to Kishore Kumar. किशोर कुमार की आवाज सुन के मैं खुश रहता हूँ. फिर उसके बाद कौन आपको, देखिए एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ लाइफ लेसन, ये जिंदगी के लिए एक सबक है. आप और आपका जो कॉन्शियंस है, आपकी आत्मा जो है, उसके साथ ही आपके संबंध है. आखिर में आप जब रात को सोते हैं ना, आपको अच्छी नींद आती है, आप खुश हैं अपने आप से, तो बस बहुत है. अब जमाना क्या कहे, कौन आपको चाइनीज एजेंट कहे, कौन देशद्रोही, ये जमाना चल, आप चलते रहिए. आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्तों पे अपनी यादें छोड़ जाता है. ये अपना लाइफ मिशन बनाइए और उसी तरह से आगे निकलिए. आपने फिर पूछा मुझे शुरुआत में कि क्या पत्रकारिता केवल पिछले 4 सालों में बदली है. ऐसी बात नहीं है. देखिए, गोदी मीडिया जिसे आज कहते हैं वो हमेशा रही है. कांग्रेस के जमाने में भी इस तरह की एक गोदी मीडिया थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि उसका प्रभाव बढ़ा. उनको एक तरह से उनका उनकी जो पकड़ है, उनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से जो इस गोदी मीडिया को चैलेंज करना चाहते हैं उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है. और ये दुख की बात है. वैसे ऐसा नहीं है कि केवल 2014 के बाद ही बिल्कुल स्थिति बदली है, लेकिन हाँ, आज जो शक्तियां हैं वो प्रोत्साहित कर रही है इस तरह की मीडिया में, और ये दुख की बात है. देखिए, आज हम यही एंड कर सकते हैं, क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई, कितने मीडिया लोगों ने इंदिरा गांधी को अपोज किया? बहुत कम थे. वेरी फ्यू पीपल अपोज द इमरजेंसी. 1 or 2 papers, 1 or 2 individuals. They went to jail also, journalists who opposed it. But they did oppose, but they were few. आज अगर गॉड फॉरबिड इमरजेंसी होती है, मुझे लगता है बहुत कम लोग फिर से उसे अपोज करेंगे. That is the problem. The problem is that we need to have more people who are ready to raise questions, ask questions. आप लोगों ने इतने अच्छे सवाल आज पूछे. All of you seem to be good journalists or potential journalists. You are asking such good questions, and we need to ask questions. I said at the start, we are not China. India is a country based on questions, on being argumentative, on debating, on dissent. You must build this new idea. I have one last question that I'm going to answer, because then I have to go. Vamishi, you have a question? Any new book on cricket, says Amod. Amod, I want to write one book on cricket next year. Maybe next year is 50 years of 1971. 1971 में पहली बार हमने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को हराया. मेरे पिताजी उस टूर पे थे, तो मैं सोच रहा हूँ 50 साल हो गए, कुछ लिखते हैं. लेकिन आजकल मैं वो किताब लिखने के लिए बहुत समय लगता है. मेरी वाइफ सागरिका किताब लिख रही है, और घर में एक समय में एक ही व्यक्ति लिख सकता है. सर, excuse me, sir. Yes, Vami. Yes. Excuse me, sir. जी. Sir, I am Siddharth from Jaipur, Rajasthan. Yes. और सर, मुझे तो सिर्फ आपको इतना बोलना है कि आपकी जो आज की कन्वर्सेशन हुई, ये काफी एकदम अच्छी वाली थी. और जब आप लोगों को सुनते हैं सौरभ सर के साथ नेतानगरी पे, या फिर राहुल सर के साथ, तो मतलब ऐसा मतलब कुल चहल की दुनिया से बाहर आके एक आराम से कुछ अच्छा सुनने को मिलता है. ये ऐसा था. चलिए, मैं इस बात से खुश हूँ कि आप लोग इतना नेता नगरी सुन रहे हैं, कि नेता नगरी इतना हिट प्रोग्राम हो गया. हम लोग रोज इसी तरह से करते हैं कि आप लोग सुन रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है. Sir, only one last question. Yes. Vishal, sorry, Rajiv. Vishal's already asked. Let's give a chance to Vamshi. He's been waiting for very long. Ma'am, if I have given a chance, I'm from Northeast, so I would Thank like you, to madam. place a question. Yeah, sure. The boy from Northeast also. Yes. Okay. Question. 5 minutes only. Yeah. Okay. I'll be waiting for my opportunity. Yeah. Vamshi, please let him go first, and then Rahul. Yeah. Sure. Yeah, thank you, sir. Rajdeep, sir, I watch your India Today every day. I'm a big fan of the channel as well as your journalism. So often, what has news become is that once something wrong happens, a big damage happens, it becomes a news. Then, as you said, now we start about public health. Rather, we should be checking the reality beforehand. 2 months ago, the central government has issued guidelines to all states as far as the support required for disabled people during Corona period, be it in lockdown, be it in quarantine centers, or when they get infected. As of now, we have not had any serious stories. So can we do a reality check before something damaging happens
Can we check out with all state governments whether they have made it ready when in case of a pandemic, when normal citizens are themselves are facing problems? What about this marginal community? I would like to know, can we do a reality check before a major accident happens? No, you know, we can. And if you have any story ideas, please again email me rajdeepsardesai52@gmail.com. RAJDEEP Sardesai SARDSAI52@gmail.com. Maybe you know of some story and we can use that to do a kind of reality check. But I will keep this in mind, especially in states which are not doing enough. So please, if you ever come across a story, please send it to me. Thank you, sir. Hello, Thank you. hello. One last question. Rahul, please go ahead. एक Rahul. short question, ma'am. एक short question. Hey, Rahul, I promise Rahul. Yeah, I'm here. Rahul Bora. Hello. Go ahead, Rahul. Go ahead. Yeah. Good evening, sir. So I'm privileged enough to be a part of this webinar, and it's a blessing for me for getting this knowledge from you, sir. So myself, Rahul Bora, I'm from Assam, a small state from Northeast, as you already know. And this is the Northeastern part that we have got many issues, but our issues have not been highlighted in the center or in the wide media. So this is one of the flaws that this region is lacking. But there is a silver lining as well, that Northeast is blessed and enriched with natural resources. And I just want to narrate a story. I went to Mumbai recently for 2 months of training, and I interacted with my friends. So when I interacted, I said that, hey guys, I'm from Northeast, I'm from Assam. Oh, hi Rahul, you're from Northeast. वहाँ पे तो चाय मिलता है ना, कैसा है? So are we known only for tea? Do we have only tea as our enriched resource? We have many other resources, but sir, I just want to know from you, what is the reason why we are lacking, or why this region is lacking, sir? Let me be honest with you. You are saying that people told you Northeast only for tea. I come from Goa. Whenever I tell people about Goa, they only know fish or football. Okay. They don't know that in Goa we have lovely mangoes, we have cashew, we have very high per capita income, we have a very strong education system, health system. People don't know this. They think it's a tourist place. Only beaches are there, right? Similarly, I think we are, and part of the problem is what I said. You know, if today there's a flood in Assam, it will never get the same importance as a small drain which overflows in Delhi. We have to reduce that gap. I concede. You know, Manipur, a government almost fell last week. You hardly heard about it on national news. We have to change the way people look at news. And I think that, to my mind, is the challenge of our times. And I hope that maybe we will find a new way of doing journalism. That is my hope. And well, as they say, Umeed par duniya kayam hai. We live in hope always. Thank you very much, young man. And yes, Ratik, my name is Sanjay Dang. Yes, Sanjay. I have one question. No, I must go. Ratik, a question for you. Go ahead. This boy, yes, who has not asked. Sadaji? Sanjay Dang. Sir, my question is, जो आपने पहले कहा है कि 2014 से जो प्रभाव है या पकड़ है ये मजबूत हो गई है मीडिया पे, इसको मजबूत करने के क्या कारण है, कौन है इसके पीछे? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल लेवल का मीडिया है डीबीसी, उस पे क्या आप इस चीज का प्रभाव देखते हो या नहीं? अगर है तो कितना है? देखिए, दो चीजें, क्या कारण मैं है? आपको जल्द आंसर देता हूँ। एक तो जो हमारे ताकतवर लोग हैं वही इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है। देखिए, जो ताकत में अब मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ जी, और ये हर राज्य में है, ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में। हर राज्य में जो सत्ता में लोग हैं ना, वो मीडिया पर अपनी पकड़ जमा रहे हैं। ठीक है। तो जो ताकतवर है और उनके साथ जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, जो मालिकान है या मालिक है, उनके बीच में जो साथ गांठ होती है, इसकी वजह से ये और बढ़ता है। ठीक है। ये आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा आपने पूछा कि क्या था आपका सवाल? इंटरनेशनल बीबीसी जैसे इंटरनेशनल, देखिए बीबीसी जो है, इट्स अ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर। वही मैं कह रहा हूँ, हमें भी इस देश में पब्लिक फंडिंग चाहिए वाकई, जहां हमें किसी एक कॉर्पोरेट हाउस या किसी एक पर रिलाय नहीं करना पड़े। अगर हम ये कर पाए तो हम पत्रकारिता को आगे ले जा सकते हैं। वी नीड एन इंडिपेंडेंट पब्लिकली फंडेड मीडिया, जिस तरह से बीबीसी है। अगर उस तरह की मीडिया यहाँ हो पाए
तो ये देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। यहाँ दूरदर्शन का यही कल्पना, दूरदर्शन की यही थी, लेकिन दूरदर्शन आखिर में सरकारी चैनल बन गया। और ये दूरदर्शन की कहानी की एक दुख भरी कहानी है जो अलग एक दिन बात करेंगे। मुझे आज जाना है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राजदीप, इसका प्रभाव है बीबीसी पे, इसका प्रभाव है क्या? Can I ask one last question? Sanjay, I think we'll have to allow Rajdeep to leave. Sanjay, yes, Sanjay, very quickly. Okay, Sanjay Dang. Sir, very short question. Sanjay Dang. Sanjay. Hello. Yes. Hello, Sanjay. Yes. Okay. You're on. Sir, BBC पे इसका No, one sec. Sanjay Dang, please ask your question. No, I think his connection has broken down. I think so he is not able to listen. Okay, he can always send me a mail and I'll reply to him. सर शॉर्ट में अभी ये बताएंगे कि टीआरपी का फंडा है चैनलों का। So I think this discussion will have to. Are you able to hear me? Yes, Sanjay. Yeah. Okay, so what is your mantra on time management? You write books, you're on the television half the time, you're with Saurabh Dwivedi, and you know your cricket and so many other things are happening at the same time. What's your mantra? How do you manage all this? I manage it because there are 24 hours in a day. I manage it because I have a wonderful family which has been very supportive. None of this could have happened without the support of my family over the years. I manage it because I have my friend here, Bunty Rawat, who's helping me put this together. So I have a lot of friends who help me, and they have contributed to making life easier for me. But most importantly, I think you have a discipline and you live life one day at a time. This is my mantra. Live life one day at a time. Don't think, Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana. Forget it. Live one day at a time. And that's the way to enjoy life. Well, Rajdeep, thank you very much for your time. I thought it was a wonderful session. Sir, independent newspaper कौन सा है आज के टाइम में? मेरा favorite newspaper मैं Indian Express पढ़ता हूँ. मुझे अच्छा लगता है वो अखबार. So, can we close now? Hello. Yeah. Hello. I know a lot of people last have question, please. क्या है? Sir, एक One person last का question, कर्तव्य please. क्या है? Hello. One last question, please. Hello. Yes. Yeah. Okay, one last, please. This is no. Fine. Now, nowadays, आपने देखा है कि थोड़े लोग rumors spread करते हैं. Some of viral about corona case in Goa especially. So, आपका ऐसा क्या views है on this? Okay, it's a short question for me. Okay, thank you so much. No, I think, as I said, fake news is a big challenge. Viral videos को आपने खुद check करना चाहिए before you share it. कोई WhatsApp message आपको मिले, please do not share it until you have checked. आप खुद check करिए. आप और viral videos तो रहेंगे. TikTok का ज़माना है, but you need to do checking. Each of you, जो भी ये सुन रहा है, all of you are citizen journalists. आप नागरिक हैं, पत्रकार हैं. आप एक तरह से videos check जरूर कीजिएगा. Well, let me come in now. Rajdeep, I think we wouldn't like to be the cause of you losing your job, so we'd like to let you go. But thank you so much for agreeing to come and spend this time with us. Congratulations to all of you. You are all terrific citizens, and I have great pride in the work that George you're doing. I know you've done terrific work over the years. Well, thank you very much, and all the best. Keep safe and best of luck to all of you. Be safe, be well, be good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. Bye bye. Bye bye. Thank you. सर कुछ सवाल है जो आपसे ट्विटर पे मैं पूछूंगा. So, thank you, George, sir. It was a wonderful session. Thank you. Well, thank you for George, joining thank us. you very much. Thank you for joining us. Thanks, George. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Look forward to next Rajdeep now. Yeah, next week you must join. Next week will be interesting. After two Rajdeep, we are looking forward to third Rajdeep now. Now we are moving from Rajdeep to another name. You will know tomorrow. You will know tomorrow. Sure. Thanks a lot. Great. Okay.
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, मोर पावर टू यू। थैंक यू। थैंक यू। अगली बार हम अपेक्षा करते हैं George, सर। thank you. Who's that? Galaxy J6, who was that? अगली बार हम अपेक्षा करते हैं पत्रकारिता के अलावा भी टेक्स्ट एडिटिंग, प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटिंग के ऊपर एक सेमिनार वेबिनार आयोजित किया जाए। आप कौन बोल रहे हैं? सोपान फ्रॉम महाराष्ट्र, अमरावती। सोपान, अच्छा, थैंक यू। प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटिंग के ऊपर अगर होता है वेबिनार। आपको एक फीडबैक फॉर्म आएगा सोपान कल, उसमें सजेशन देना होता है कौन सा सेशन चाहेंगे आप, और तो उसमें जरूर भेजिएगा। जी बिल्कुल। हाय श्रुति मैम। हाय मैम, वेबिनार कराने के लिए और सरदेसाई राजदीप जी से टॉक कराने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आई नो कि कई लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले पाए, पर इतना ही समय था, सॉरी। Hello, Shruti ma'am, I just have a question for you. This is Pratichaya. मैम, मैं उन्हें ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, हाँ पूछ लूंगा। एक सेकंड भैया, पूछने तो दो। हाँ जी, ओके Pratichaya, I can hear you. Yeah, because I was not, it is because I have not listened, frankly speaking, I have only been following Republic. दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं है। दृष्टिहीनता से संबंधित किसी भी